Hello students, a precious good morning to all of you. Myself Anurag Kumar Dubey, I am a chemistry teacher from Shivratsan Children Academy. In last lecture, we discussed about ionic bond. Okay, today we are going to start a new topic or next bond like as covalent bond. Covalent bond. First question arises that what is covalent bond? Okay, so covalent bond, the bond formed by equal sharing of electron, between two same or different atom is called covalent bond. Okay, dear students, what is covalent bonds? The covalent bond is equal. The covalent bond formed by equal sharing of electron between two same or different atom is called covalent bond. Okay, now we take an example. Suppose that A atom and other is B atom. Okay, A is atom and B also a atom. Okay, so A atom and B atom. Suppose that A atom has one electron in their valence shell and B atom has one electron in their valence shell. Okay, so how A and B both are form covalent bond? Okay, first of all, both atom like as A and B approaches with each other for making covalent bond. So A and B both are approaches with each other. Okay, and electron of A and electron of B atom both are present in between A and B atom. Okay, both atoms share with each other. दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे. ओके, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन. And one share pair electron form a covalent bond between A and B. It means this dash represent covalent bond. Okay, A, B both are atom. Okay, suppose that A and B atom has one electrons. First of all, both atom approaches with each other and electron of A and electron of B, electron of A and electron of B share with each other, है ना? After that making covalent bond. Okay, now take another example. Okay, for example like as H2 molecule. Okay, in the formation of H2 molecule required two hydrogen atom. Both are same. कहेंगे कि in the formation of hydrogen molecule required two hydrogen atom. First of all, we will make Lewis structure of hydrogen atom.
we know very well hydrogen atomic number 1 and electronic configuration 1. It means this is valence shell of hydrogen. Okay, if hydrogen has 1 electron in their valence shell, so it is represented like this. Okay, and other atom is same, so also representation similarly. So this is Lewis structure. Lewis structure for making covalent bond. For making covalent bond, both hydrogen atom approaches with each other. And electron of one hydrogen and electron of other hydrogen both are present in between hydrogen atoms. For making covalent bond, hydrogen atom share with one electron of other hydrogen atom and other hydrogen atom share one electron with other hydrogen atom. Okay, this electron is shared paired electron. Okay, and one shared paired electron form one covalent bond like H bond H. Okay, and obtain structure like as a helium. Helium atomic number 2. Helium atomic number 2. It means we know very well helium is a stable element, है ना. We know very well helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, these are inert elements. It means these elements do not participate in the formation of chemical bond. Every element try to achieve stable electronic configuration like noble gases. Why elements participate in the formation of bond? It means such type of elements. What is the answer of this question? What is the question? Why elements participate in the formation of bond? So what is the answer of this question? Okay, the answer is if elements has 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 electron in their valence shell. Every element try to achieve stable electronic configuration like noble gases by transfer of electron or sharing of electron. Okay, so hydrogen atom, if hydrogen and hydrogen shared electron, so H2 molecule has 2 electron which is nearest to helium atom. It means H2 molecule is a stable like helium. Okay, and other example, like as the O2 molecule. Okay, O2 molecule have 2 oxygen atom. Oxygen atomic number 8, electronic configuration 2, 6. It means valence shell have 6 electron. Okay, this electron represented by Lewis symbol around oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, for stable electronic configuration, we know very well 6 electron present in valence shell of oxygen. It means this is unstable. For stabilization, oxygen atom required to share electron with other atom. Okay, so this oxygen shared electron with this other oxygen, this oxygen shared electron with other oxygen. Okay, it means both oxygen and atom try to achieve
stable electronic configuration like nearest gases. Okay, how to combine both oxygen atom? First of all, both oxygen atom approaches with each other, okay, and electrons represented by Lewis symbol. So 2 to 4 to 6, 2 to 4 to 6. We know oxygen atomic number 8, electronic configuration 2 6. It means 2 electron required to complete octet. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपना शेयर करेगा? क्योंकि हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. कैसे? अब ये देखिए, दिस इलेक्ट्रॉन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विथ अदर ऑक्सीजन. अब देखिए 2 to 4 to 6 to 8. अब देखिए ए भी ऑक्सीजन सिमिलरली शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विथ अदर ऑक्सीजन. अब आप चेक कर सकते हैं इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6 to 8, इसके पास 2 to 4 to 6 to 8 है ना. शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उस पर दोनों का बराबर अधिकार होता है. दिस इलेक्ट्रॉन इज शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. These electrons are shared paired electron. If there is 2 shared paired electron, it means how many bonds will be formed? कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कितना बॉन्ड बनेगा? तो बनेगा कितना? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. ओके, समझ में आ गया होगा. फॉर होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूँ N2 मॉलिक्यूल, इसके बाद आपका है Cl2 मॉलिक्यूल, N2 Cl2 और आपको देता हूँ F2 मॉलिक्यूल. नेक्स्ट से HCl H2O. चलिए, नाउ टेक एन अदर एग्जाम्पल like as H2O. In H2O, oxygen atom is central atom. It means oxygen present at center and hydrogen atom present around the oxygen. Okay. First of all, we will make Lewis structure of every atom. Okay, so hydrogen has 1 electron, and oxygen atomic number 8 2 6. Okay, 6 electron. Valence shell has 6 electron. We know very well only valence electron participate in the formation of covalent bond or other bonds. Okay, 2 4 5 6. Okay, so this is Lewis structure of H2O है ना. For stable electronic configuration, hydrogen share 1 electron with oxygen atom and obtain structure like as a helium. This hydrogen also share 1 electron with oxygen and obtain stable structure like as a helium. Okay, and oxygen atom 2 to 4 1 5 and 6 electron. It means 2 electron required for complete octet. Okay, so oxygen atom share 1 electron with each hydrogen. Now you can see how many electrons have oxygen 2 to 4 to 6 to 8. Okay, it means structure like as a neon. Okay, so what is the bonding structure of H2O molecule? Oxygen, this is the shared paired electron, such type of electron which is participate in sharing, that is shared paired electron. Okay, oxygen, अब हाइड्रोजन एंड अदर हाइड्रोजन है ना, 1 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन
one covalent bond. This is H2O molecule. Okay, another example like as HCl, HCl 1 2 3 4 5 6 7, electronic configuration 2 8 7, hydrogen 1. Okay, so hydrogen required 1 electron to complete octet. So hydrogen share 1 electron with chlorine atom, and chlorine valence shell has 7 electron, required 1 electron to complete octet. So chlorine share 1 electron with hydrogen atom. So number of electrons of chlorine 2 to 4 to 6 to 8 and hydrogen 2. This is share pair electron. मतलब hydrogen and chlorine between present one single bond. Okay, clear? तो कैसे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, आपको समझ में आ गया होगा. इक्वल शेयरिंग, ध्यान दीजिएगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, है ना. ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज types of covalent bond. Okay, covalent bond is of covalent bond is of two types. It is of two types. First, non-polar covalent bond. Non-polar covalent bonds. Covalent bond. When covalent bond formed between two same atom. When covalent bond is formed between two same atom, both the atom electrically neutral. Okay, when covalent bond is formed between two same atom, both the atom electrically neutral, and such type of covalent bond is called non-polar covalent bond. Okay, non-polar covalent bond. What is non-polar covalent bond? When covalent bond is formed between two same atom, both atoms electrically neutral, and such type of covalent bond is called non-polar covalent bond. It means non-polar covalent bond always formed between two identical atoms. For example, like as a H2 molecule, Cl2 molecule, O2 molecule, N2 molecule. Okay, these atoms या these molecules have non-polar covalent bonds. For example, Cl2 molecule. Okay, so Cl2 molecule formed by
two Cl atom, Cl2 molecule formed from two Cl atom, electronic configuration 287 and 287. Okay, it means valence shell has 7 electron. Okay, so it is represented by Lewis symbol, है ना. It means one electron required to complete octet in the case of Cl2 molecule. Every chlorine want one electron for complete octet. Okay, so for making bond, both atoms या both chlorine atoms approaches with each other and share electron with each other. So one electron of chlorine atom present in between of both chlorine and one electron of this chlorine present in between of both chlorine, है ना. तो one electron required to complete octet. तो this chlorine या first chlorine, this chlorine overlap या first this chlorine share one electron with other electron of chlorine atom and other chlorine, मतलब this chlorine share one electron with other chlorine atom. Okay, now check 2 to 4 to 6 to 8, 2 to 4 to 6 to 8, है ना. What is the bonding structure? Here is a one shared pair. One shared pair मतलब एक shared pair मतलब जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वन शेयर पेयर. और वन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फॉर्म वन कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, Cl बॉन्ड Cl. क्लियर. बाकी आप बना लेंगे H2, O2, N2, F2. कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज polar covalent bond. Okay, polar covalent bond. What is polar covalent bond? When covalent bond formed between two different atom. When covalent bond formed between two different atom, the shared pair electron attracted towards more electronegative atom and acquires partial negative charge and other handed atoms acquire partial positive charge. Okay, such type of bond is called non-polar. Okay,
what is called polar. When covalent bond formed between two different atoms, okay, the shared pair electron attracted towards more electronegative atom and acquires partial negative charge, and other handed atoms acquires partial positive charge. Such type of covalent bond या such type of bond is called polar bond या polar covalent bond. Okay, it means polar covalent bond always present between two different atoms. Okay, टू डिफरेंट एटम मीन्स क्या होगा कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी, तभी हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो दो एटम होंगे उसमें वन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अदर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या करेगा, आपने पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है इन पीरियोडिक टेबल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं HCl मॉलिक्यूल। ओके, HCl मॉलिक्यूल में क्या है हमारा H एंड Cl, एटॉमिक नंबर 1, तो लुईस स्ट्रक्चर इसका ये हो गया। ओके, एटॉमिक नंबर 17 लुईस स्ट्रक्चर 287। ओके, तो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट दियर ऑक्टेट एंड क्लोरीन आल्सो रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, मतलब बोथ एटम्स रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट दियर ऑक्टेट, है ना। तो दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेंगे। पहले हम देखेंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ एटम्स अप्रोच विथ ईच अदर, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। इसके बाद जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा वह दोनों एटम के बीच में आ जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्लोरीन का भी ये एक इलेक्ट्रॉन, और बचा इसके पास कितना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन, ठीक, एंड क्लोरीन आल्सो शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन, है ना। अब चेक करिए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा वह दोनों एटम में काउंट होगा, क्योंकि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अधिकार होगा और इसका भी होगा। अब कितने शेयर पेयर बन रहे हैं, केवल 1 शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, H बॉन्ड Cl, ठीक है ना। बन तो गया, ऑक्टेट तो पूरा हो गया, बट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी नो वेरी वेल, हमको अच्छे से पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ओनली टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ओके, तो क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन हाइड्रोजन। सो क्लोरीन अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। एक कोवैलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, देखिए एक शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इफ क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, कोवैलेंट के शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
अगर बिकॉज हाइड्रोजन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच के ले जाएगा? क्लोरीन। उसके पास इतना ताकत नहीं है, पावर नहीं है कि वह अपने इलेक्ट्रॉन को बचा सके। क्यों? क्योंकि उससे जुड़ा हुआ जो एटम है वह ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वह उसके भी इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब कम आ जाएगी तो कौन सा क्या आ जाएगा उसके ऊपर? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन खींच के ले जाएगा इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स बॉन्ड विल बी पोलर। बॉन्ड कैसा हो जाएगा हमारा? पोलर हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल इज सपोज H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इसको चेक करते हैं दिस इज पोलर और नॉन पोलर। कैसा है ये? सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट अराउंड द ऑक्सीजन। ओके, एंड लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन 2,6,1,1. Hydrogen has 1 electron in their valence shell and this hydrogen also has 1 electron in their valence shell. Okay, and oxygen valence shell has 6 electron. है ना? तो हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन एंड एक्वायर स्ट्रक्चर लाइक एज द हीलियम. दिस हाइड्रोजन आल्सो शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन एंड एक्वायर स्ट्रक्चर लाइक एज द हीलियम. एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स in their balancer for complete octet. So oxygen share 1 electron with both hydrogen. है ना? अब काउंट कर ले, ऑक्सीजन के पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 लाइक एज अ नियॉन. हाइड्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन्स, शेयर पे इलेक्ट्रॉन दोनों का है, ये ऑक्सीजन का भी है और हाइड्रोजन का है. वाई? बिकॉज दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड. और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स. इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह हो गया? हीलियम की तरह. इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर हीलियम की तरह. तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारा? ऑक्सीजन दिस इज शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 शेयर्ड पेयर्ड. एक ही शेयर्ड पेयर्ड है, एक जोड़ी को हम क्या बोलते हैं? 1 शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिटवीन 1 शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन मतलब 1 कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? इट इज रिप्रेजेंटेड अ सॉलिड लाइन. और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 बॉन्ड, 1 शेयर्ड पेयर यहाँ पे है, 1 शेयर्ड पेयर वहाँ पे है, तो एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना. बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इससे हम क्या कहेंगे? अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. और लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन, इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, अब इसमें देखिए व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. तो हाइड्रोजन कहाँ पे है? फर्स्ट ग्रुप में. फिर हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना? तो फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन होल पीरियोडिक टेबल. आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन होल पीरियोडिक टेबल. मतलब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. उसके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन है? ऑक्सीजन है. अगर फ्लोरीन हमारा क्या है? ये बादशाह है, दिस इज द किंग. ठीक है, और ये कौन है? मिनिस्टर है उसका. ठीक, तो अब देखिए क्या कि ऑक्सीजन क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी. तो ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन हाइड्रोजन. तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की. तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. So oxygen attracts shared pair electron of covalent bond and acquires partial negative charge and hydrogen bears partial positive charge. अब देखिए ये बॉन्ड के बीच में क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, मतलब बॉन्ड विल बी पोलर हो गया. पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड विल बी पोलर हो गया. इसका मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स. एंड एक चीज़ ये भी है कि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? डिफरेंस. ये पोलर क्यों बन रहा है?
ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। और इफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एटम, अगर मान लीजिए H2 है, N2 है, O2 है, F2 है, अगर सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम और इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, N2H2 वहाँ पे वो कोई, और एक चीज़ जान लीजिए, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज इम्प्योर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज द प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर जो कोवैलेंट बॉन्ड है विच इज प्रेजेंट इन H2, O2, N2, F2, Cl2, दैट इज द प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, बट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज अ इम्प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। ये इम्प्योर है, क्यों? क्योंकि इसमें एक तो कोवैलेंट बॉन्ड है और साथ साथ उसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी है ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं, इसको आप कर सकते हैं। जैसे हमारा है HCl, HBr, HI, HF, इन सब में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक, इन सब को आप बनाइएगा और बना करके हमारे पास सेंड करिएगा। ओके, चलिए कहेगा कि इफ टू एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर, कहेगा कि इफ टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर, bond is known as single covalent bond and it is represented by dash, it is represented by one dash या one solid line। okay, second, if two atoms share, जैसे if two atoms share two electron pair, जैसे सॉरी यहाँ पे one electron pair, वन इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। वन इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक जोड़ी। ठीक है, इफ टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर, इफ टू एटम शेयर, लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं सिर्फ, इफ टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड इज नोन एज डबल बॉन्ड। उसे हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड, and it is represented by two dash line, double bond। okay, third, if three atoms, या कह सकते हैं if two atoms share three electron pair, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, तो बॉन्ड इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड। उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय थ्री डैश लाइन। ओके, फॉर एग्जांपल से CH4 है तो कार्बन बैलेंस सेल है, 4 इलेक्ट्रॉन, H 1 1 1 1 ऐसे शेयर करेगा, ऐसे ना, और कार्बन सबके साथ। अब चेक करिए 2 2 4 2 6 2 8 जो बॉन्ड बनेगा, शेयर पेयर 1 शेयर पेयर 1 शेयर पेयर 1 शेयर पेयर 1, टोटल मत करिएगा 1 2 3 4 है तो 4 बॉन्ड बन जाएगा, नहीं, ये अलग अलग शेयरिंग है दो दो इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ बनेगा C बॉन्ड H 1 शेयर पेयर 1 शेयर पेयर 1 शेयर पेयर 1 शेयर पेयर, तो ये क्या है हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 शेयर पेयर होते हैं, तो ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड।
नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बिटवीन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, तो लुईस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, सेम एटम है तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बैलेंस सेल, रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, सो दिस नाइट्रोजन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन विथ अदर नाइट्रोजन एटम एंड दिस नाइट्रोजन या अदर नाइट्रोजन एटम also share 3 electron with other nitrogen atom. अब how many shared pair electron? 1 2 3 shared paired electron. तो कितने बॉन्ड बनेंगे? एंड सिंगल डबल ट्रिपल, मतलब इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन है, बैलेंस शेल है 6 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस शेल है 6 इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। इट मीन्स ऑक्सीजन एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विथ अदर ऑक्सीजन एटम एंड दिस ऑक्सीजन एटम आल्सो शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विथ अदर ऑक्सीजन एटम। तो हाउ मेनी शेयर्ड पेयर? 1 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन बिटवीन विल बी 2 बॉन्ड, दैट इज अ डबल बॉन्ड। इसे हम क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, है ना। कुछ मॉलिक्यूल्स हम दे रहे हैं जिनका आप स्ट्रक्चर बना करके लाएंगे। O2 CO2 CH4 N2 C2H4 C2H6 C2H6 और C2H2 CCl4। ओके, जितने ये मॉलिक्यूल हैं सबका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करके फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। आज के लिए क्या इतना काफ़ी है, ठीक है। एंजॉय करिए केमिस्ट्री के साथ। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।